Welcome to Professor Benzene. Today we are discussing the 14th part halogen reactions and fluorine in p block elements. Let's begin. तो सबसे पहले हेलोजेंस रिएक्ट कैसे करते हैं एक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन they all react with hydrogen to give hydrogen halides but affinity for hydrogen decreases from fluorine to iodine. सभी हाइड्रोजन्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन हलाइड यानी कि HX टाइप के कंपाउंड बनाते हैं और जो रिएक्टिविटी है एफिनिटी यानी लव फॉर वाटर the tendency to react with water decreases from fluorine to iodine. They dissolve in water to form hydraulic acids. The acidic strength of these acids varies in the order HF least and HI is most. मतलब हाइड्रोलिक एसिड बनाते हैं रिएक्ट करके और सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है आयोडीन HI और लीस्ट होता है HF. The stability of these slides decreases down the group due to decrease in the HX bond dissociation enthalpy. तो नीचे ग्रुप में जब नीचे आते हैं तो उस केस में घटती जाती है स्टेबिलिटी. जो स्टेबिलिटी ऑफ द हलाइड्स जो हलाइड बन रहे हैं HF HI HCl इनकी स्टेबिलिटी जो है वो घटती जाती है क्योंकि जो बॉन्ड डिसोसिएट होने की एंथैल्पी है वो भी घटती है. तो HF की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, उसके बाद HCl की, उससे कम HBr और सबसे कम HI. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन. Halogens form many oxides with oxygen but most of them are unstable. ज़्यादातर हाइड्रोजन ऑक्साइड्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं. फ्लोरीन फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स OF2 and O2F2. However, only OF2 is thermally stable at 298 Kelvin. So OF2 is the only stable halogen oxide as of now. The oxides are essentially oxygen fluorides because of the higher electronegativity of the fluorine and oxygen. दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादातर जो ऑक्साइड्स हैं वो ऑक्सीजन फ्लोराइड्स होते हैं. बट आर स्ट्रांगली फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स O2F2 ऑक्सीडाइजेस प्लूटोनियम PuF6 टू PuF6. प्लूटोनियम से PuF6 बनाता है कौन? O2F2. सो ऑक्सीडाइज कर देगा उसको एंड द रिएक्शन इज यूज्ड in removing plutonium as PF6 from spent nuclear fuel. न्यूक्लियर फ्यूल में से प्लूटोनियम निकालने के लिए यानी कि PF6 के फॉर्म में प्लूटोनियम को अलग करने के लिए यूज़ करते हैं O2F2 का. क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फॉर्म oxides in which the oxidation states of halogens range from +1 to +7. क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन जो है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो पढ़ते हैं +1 to +7 के बीच वेरी करते हैं जब वो ऑक्साइड्स बनाते हैं. और कॉम्बिनेशन ऑफ द काइनेटिक एंड थर्मोडायनामिक फैक्टर्स lead to the generally decreasing order of stability of oxides to form halogens. Halogens की जो ऑक्साइड्स हैं उसकी जो स्टेबिलिटी है वो घटती है बेस्ड अपॉन काइनेटिक एंड थर्मोडायनामिक फैक्टर्स. I is most and then Cl and last is Br. The high oxides of halogens tend to be more stable than lower ones. जो high oxides हैं higher oxides वो ज़्यादा stable होते हैं compared to lower ones. Chlorine oxides Cl2O, ClO2 and Cl2O6, Cl2O7 are highly reactive oxidizing agents and tend to explode. बहुत ज़्यादा reactive होते हैं क्लोरीन के ऑक्साइड्स और explode कर जाते हैं. Cl2O is used as a bleaching agent for paper pulp and textiles and in water treatment. The bromine oxides Br2O, BrO2, BrO3 are the least stable halogen halides and exist only at low temperatures. बहुत कम टेम्परेचर पे exist करते हैं ब्रोमीन के ऑक्साइड्स. They are very powerful oxidizing agents. रिएक्टिव ज़्यादा है, स्टेबल कम है, तो easily oxidize others. The iodine oxides I2O4, I2O5, I2O7 are insoluble in solids and decompose on heating. I2O5 is very core oxidizing agent and it's used in estimation of carbon monoxide. जो भी ऑक्साइड जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उतना ही कम स्टेबल होगा और उसी के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी कम है तो दूसरे को ऑक्साइज जल्दी करेगा. सो इट बिकम्स बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Reactivity towards metal. Halogens react with metals to form metal halides. For example, bromine reacts with magnesium to form magnesium bromide. यानी कि MgBr बनाएगा. Reactivity of halogens towards halogens आपस में कैसे करते हैं? Halogens combine amongst themselves to form a number of compounds known as interhalogen of the type AB, AB3, AB5, AB7, where A is larger in size halogen and B is smaller size halogen. तो अब इसमें जो halogens हैं आपस में रिएक्ट करेंगे AB यानी कि एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं ClF बनेगा. AB3, AB5 जो हायर लार्जर साइज में आ रहा है तो वहाँ पे आयोडीन यूज़ होता है मोस्टली. IF7 बनाता है. इस तरीके से एलिमेंट्स जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं. अब बात करेंगे फ्लोरीन की.
तो फ्लोरीन बनता है कैसे? बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड. इलेक्ट्रोलाइट यानी कि मोल्टन KHF2 एंड 1 पार्ट एंड HF इन 5 पार्ट्स. तो एनोड पे कार्बन होगा, कैथोड पे स्टील होगा और वेसल में होगा मोनल मेटल. इलेक्ट्रोलाइज कराएंगे तो कैथोड पे क्या होगा? 2HF will accept electrons to form H2 gaseous and anode में 2F minus will form F2 will lose 2 electrons. The F2 gas thus evolved must be free from HF which is more corrosive than fluorine. So HF जो बना वो फ्लोरीन से ज़्यादा corrosive है, उसको इवॉल्व करना बहुत ज़रूरी है. In order to make the fluorine free from HF, the gas is passed through NaF which absorbs HF. तो फ्लोरीन और HF को आपस में सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं NaF. उसमें क्या होता है कि NaF जो है वो HF को एब्सॉर्ब कर देता है, तो फ्री फ्लोरीन जो है वो मिल जाता है. एनोड ऑफ द carbon should be free from graphite because F2 reacts with graphite easily to form polymeric substance known as graphite fluoride. एनोड पे कार्बन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर होता है तो ग्रेफाइट जो है, कार्बन शुड बी फ्री फ्रॉम ग्रेफाइट, क्योंकि अगर ग्रेफाइट होगा कार्बन में तो फ्लोरीन जो है वो रिएक्ट करके एक पॉलीमरिक सब्सटेंस बना देगा विच इज कॉल्ड ग्रेफाइट फ्लोराइड. देयर शुड बी नो मॉइस्चर प्रेजेंट इन द वेसल, अदरवाइज फ्लोरीन विल रिएक्ट विद वाटर. अगर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा वेसल में तो फिर फ्लोरीन जो है वाटर से भी रिएक्ट कर सकता है. तो उस केस में क्या होता है? 3 वाटर प्लस 3F2 विल फॉर्म 6HF प्लस O3 or 2F2 plus 2 water will form 4HF plus O2. It is not possible to prepare fluorine by electrolysis of aqueous solution of NaF or KF. It is because when aqueous solution of KF is subjected to electrolysis, there will be following two oxidation in competition at anode. तो एक साथ दो जगह होगा oxidation in the anode. H2O will form half O2 plus 2H plus lose 2 electrons. जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो होगा -1.23 वोल्ट्स, और साथ ही F माइनस विल फॉर्म हाफ F2 प्लस लूज इलेक्ट्रॉन, जिसका SOP होगा -2.87 वोल्ट्स. तो ये आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे. एज अ मैटर ऑफ रूल ऑफ सब्सटेंस विल बी ऑक्सीडाइज्ड. एज अ मैटर ऑफ रूल दैट सब्सटेंस विल बी ऑक्सीडाइज्ड whose SOP is higher, therefore water gets oxidized at anode and not F2. जिसका SOP ज़्यादा है वो ऑक्सीडाइज होगा रूल के अकॉर्डिंग, इसलिए फ्लोरीन की जगह वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा. केमिकल मेथड कैसे बनता है? फ्रॉम K2MnF6 पोटेशियम हेक्साफ्लोरोमैंगनेट 4. सो K2MnF6 प्लस 2SpF5 विल फॉर्म 2KSpF6 प्लस MnF3 प्लस हाफ F2. इसमें एक्चुअली में पहले MnF4 बनेगा और फिर MnF4 विल ब्रेक इनटू MnF3 प्लस हाफ F2. तो यहाँ से हमको मिल रहा है. In the reaction, the stronger Lewis acid SpF5 displaces the weaker one, MnF4, from its salt. MnF4 is unstable and readily decomposes to give MnF3 fluoride. MnF4 जो बना वो स्टेबल नहीं है तो MnF3 बना देता है. प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी ग्रीन की? Diatomic pale green yellow, which appears to be almost colorless. It is a heavier than air. Air से heavier होता है. It condenses to yellow liquid at -188 degrees centigrade and yellow solute at -223 degrees centigrade. It has pungent odor and is highly poisonous. बहुत ज़्यादा poisonous भी होता है और -188 पे जो कंडेंस करेगा और -223 पे सॉलिड बना देगा. ऑक्सीडाइजिंग रिएक्टर कैसा है? इट इज़ मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. F2 plus 2 NaX will form 2 NaF plus X2, जहाँ पे X2 जो है वो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है. इवन अमंग हेलोजेंस फ्लोरीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, इसलिए मोस्ट बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए दूसरे हेलोजेंस को रिप्लेस कर देता है. इट कैन ऑक्सीडाइज ऑल अदर हैलाइड्स आयंस इनटू हेलोजन मॉलिक्यूल. बाकी सभी हैलाइड्स को दूसरे हैलाइड्स को हेलोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है. इट कैन ऑक्सीडाइज ClO3 माइनस प्लस 5 स्टेट में है टू ClO4 माइनस प्लस 7 स्टेट एंड IO3 माइनस टू IO4 माइनस. कैसे? F2 प्लस ClO3 माइनस प्लस वाटर विल फॉर्म 2F माइनस प्लस ClO4 माइनस प्लस 2H प्लस एंड इट कैन ऑक्सीडाइज HSO4 माइनस टू H2SO8 SO4 minus 2
H2O8 2 माइनस, कैसे 2HSO4 माइनस जो कि +6 स्टेट में है, प्लस F2 विल फॉर्म 2F माइनस प्लस H2O8 2 माइनस जो कि अगेन +6 स्टेट में है, प्लस 2H प्लस. Sum of the O2 minus changes to O minus in the persulfate ions having O minus, hence oxygen getting oxidized. Oxygen को भी oxidize कर देता है, इतना ज़्यादा stronger oxidizing agent है fluorine. Reaction with NaOH solution with dilute alkalis form oxygen difluoride and with concentrated alkali O2. कंसनट्रेट होगा तो O2 बनाएगा, नहीं तो बनाएगा ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड. सो 2F2 विल फॉर्म प्लस 2NaOH डाइल्यूट विल फॉर्म OF2 प्लस 2NaF प्लस वाटर, और 2F2 प्लस 4NaOH कंसनट्रेट अगर हुआ तो ऑक्सीजन बनाएगा प्लस 4NaF प्लस 2 वाटर. रिएक्शन विद NH3 अगर अमोनिया है तो डिस्टिंक्शन फ्रॉम अदर हाइड्रोजन्स, कैसे 2 अमोनिया प्लस 3F2 विल फॉर्म N2 प्लस 6HF and other halogens form explosive NX3 with concentrated HNO3 which is liquid ammonia. लिक्विड अमोनिया अगर यूज़ करते हैं तो बाकी सभी केसेस में NX3 बनता है, जबकि इस केस में नाइट्रोजन अलग और HF बनेगा साथ में. रिएक्शन विद H2S, तो H2S प्लस F2 विल फॉर्म SF6 प्लस 2HF, यहाँ पे H2S जो वो बर्न करेगा. रिएक्शंस विद SiO2 होगा तो अटैक्स द ग्लास at about 100 degrees centigrade. SiO2 solid plus 2F2 gaseous will form SiF4 plus O2 gaseous. The reaction is slow with dry F2. अगर F2 ड्राई है तो रिएक्शन स्लो होगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको बर्निंग होती है. इट कैचेस बर्न्स अटैक्स ग्लास एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि फ्लोरीन जो है वो 100 डिग्री के टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे ग्लास SiO2 जो है सिलिका उसको अटैक कर सकता है. Reaction with water, so 2 water plus 2F2 will form 4HF plus O2. यहाँ पे sometime a little amount of O3 also forms. O3 भी बन सकता है, उस केस में 3 water plus 3F2 forms 6HF plus O3. और अगर xenon हो तो reaction xenon plus fluorine F2 will form XeF2, XeF4 and XeF6. The ratio 2:1, 1:5 and 1:2. तो ये अलग अलग रेशियोज में फॉर्म करेगा. रिएक्शन विद H2, सो H2F2 विल फॉर्म 2HF और H2F2 बोथ अकर इन इवन इन डार्क, मतलब इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट ऑल्सो H2 एंड F2 कैन रिएक्ट. रिएक्शन विद SO3 प्लस F2 विल एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड एंड AgF सिल्वर फ्लोराइड के साथ फॉर्म करेगा FSO2OOSO2F. ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करेगा. और अगर O2 है तो only in presence of silent electric discharge O2 plus F2 will form O2F2. Reaction with metals and nonmetals, it combines with most of the metals, almost all nonmetals except O2 and N2 ignite spontaneously in presence of F2. O2 और N2 के अलावा सभी metals और nonmetals रिएक्ट करता है, और O2 और N2 है वो ignite करते हैं, यानी कि आग पकड़ लेते हैं. So 2Ag plus F2 will form 2AgF and 2Al plus 3F2 will form 2AlF3. कार्बन अगर हो 3 प्लस 2F2 प्लस विल फॉर्म CF4, C प्लस 2F2 फॉर्म CF4 एंड Si प्लस 2F2 विल फॉर्म SiF4. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके. मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द. थैंक यू वेरी मच.